Hello student, this question is basically asked in year 2014 for 2 marks, and this question is also related to the what your EDC. And if I just see the question, so question is like this: an ideal MOS capacitor has a boron doping concentration of 10 to the power 15 per centimeter cube in the substrate. When a gate voltage is applied, a depletion region of with 0.5 micrometer is formed with a surface or channel potential of 0.2 volt. Given that epsilon naught is 8.854 into 10 to the power minus 14 farad per centimeter, and the relative permittivities of the silicon and the silicon dioxide are 12 and 4 respectively, the peak electric field in volt per micrometer in the oxide region is. So now we see the solution of this question in very much detail, and this question is little bit interesting. Okay, तो देखिए ध्यान से इसमें अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में आपको जो सबस्ट्रेट दिया गया पीटर सबस्ट्रेट उसकी डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन प्रोवाइड करी गई है विच इज 10 टू द पावर 15 पर सेंटीमीटर क्यूब एंड एक्सडी जो डिप्लीशन लेयर बननी है उसकी वैल्यू दी गई है 0.5 माइक्रोमीटर एंड द वीएक्सआई द वोल्टेज अक्रॉस दिस डिप्लीशन लेयर आई से दिस ये जो डिप्लीशन लेयर आपकी फॉर्म हो रही है इसकी आपको इसके क्रॉस कितना वोल्टेज है वो वीएक्सआई की वैल्यू आपको दी गई है और इसमें इसकी क्या विथ है वो भी आपको प्रोवाइड करी गई है यस दिस इज and permittivity of air and permittivity of silicon as well as what oxide layer is also given, and the question is basically we need to find out the what maximum electric field which is present in your oxide layer. Now see what is basically the discussion of this your क्वेश्चन यस इफ आई से कि कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने क्या कर रखा है यहाँ पे VGS लगा रखा है जैसे क्वेश्चन में कहा गया है, तो उन्होंने कहा क्वेश्चन में VGS लगाने के बाद व्हाट वी ऑब्जर्व दैट कि यहाँ पे जो वोल्टेज आपको अपियर हो रहा है VXI, उस VXI की वैल्यू आपको कितनी दी गई है मतलब वोल्टेज अक्रॉस आई से दिस सेमी कंडक्टर और आई से दिस डिप्लीशन लेयर हाउ मच वी गेट विच इज और आई से सरफेस ऐसे भी कह सकते हो कितना वोल्टेज आपको दिया गया है विच इज 0.2 वोल्ट यस. So it should be we have a what 0.2 volt. Now just try to understand. जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे अगर हम VGS कहेंगे तो कहीं ना कहीं इस ऑक्साइड में वोल्टेज होगा दिस इज कॉल्ड द VOX एंड प्लस VXI. So VGS is equal to VOX plus VXI. तो यहाँ पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल है आपका और कुछ पोटेंशियल आपका कहाँ पे है इस ऑक्साइड लेयर में. अब देखिए ध्यान से जैसे कि अगर यहाँ पे हम VGS अप्लाई करते हैं सो वी हैव डेफिनेटली द टू मटेरियल, एक तो आपके पास ऑक्साइड है दूसरा आपके पास सेमीकंडक्टर है. तो ऑक्साइड में भी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है और साथ के साथ आपके पास डिप्लीशन लेयर में भी इलेक्ट्रिक फील्ड है. सो वी हैव व्हाट द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ऑक्साइड and in the basically the semiconductor, and both are basically the different medium. So here we have one boundary, तो यहाँ पे कहने की मेरे पास बाउंड्री है. So number of times or I say this generally I say we always assume that the electric field is continuous और I say this the D vector और the D is continuous. So देखिए ध्यान से यहाँ पे हम ये मान के चल रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो आपका D वेक्टर है और I say this D जो है वो क्या continuous है यानी DOX जो है यानी जो ऑक्साइड है उसकी जो डेंसिटी फंक्शन I say this वो क्या आपका है which is I say DOX, which is very much similar to I say this DXI. So यही मैं मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी है which is very much I say this continuous electric field है. So continuous electric field if I assume so DOX is equal to DXI. So here I say this D is I write epsilon OX into EOX electric field and which is equal to epsilon S and I say this is epsilon XI, sorry this is electric field XI. तो यहाँ पे हम इसको इस तरह ले सकते हैं epsilon OX and I say this electric field of oxide layer and this is VL. So I need basically the epsilon electric field in oxide epsilon S into epsilon I. Okay, this is not epsilon Xi here, sorry. So this is epsilon S, this is the permittivity of the semiconductor, and I say this is electric field in the semiconductor and this is a permittivity और ऑक्साइड लेयर. तो ये इस तरह से कुछ इसकी मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए. So, आपको पता है कि सर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन OX तो फिक्स है. तो इफ आई नीड द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड in the oxide layer and which is possible only whenever we calculate I say this the maximum electric field which is present in the semiconductor okay. So I say this I need epsilon xi maximum. तो मुझे क्या करना है किसी तरह से ये जो आपके पास जो सेमीकंडक्टर है इस सेमीकंडक्टर में आप ऐसे कह लें या जो आपके पास यहाँ पे जो सेमीकंडक्टर कहेंगे क्योंकि पी टाइप सेमीकंडक्टर है तो यहाँ पे क्या मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है. अगर मुझे किसी तरह से मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल जाए सो डेफिनेटली वी कैन कैलकुलेट दिस. ओके, एक बार एक काम करते हैं इसको जरा इस तरह से बनाते हैं जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. सी इफ आई सी हियर दिस इज okay. If I draw here for example I say
If I just rub this, there is a no. So finally we get this EOX max is this. Okay. So now just try to understand. जैसे कि अगर हम एक बार इसको इस तरह से प्लॉट करें, here we have a metal, this is metal here. तो ये मेरे पास कहीं ना कहीं मेटल है, एंड देन वी हैव व्हाट, दिस इज मेटल जो आपने लगा रखा है. इसके बाद दिस इज वी हैव ऑक्साइड, SiO2 ऑक्साइड, and then this is we have what, depletion layer. This is minus, 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 and this is p type substrate, p channel, p type substrate, which is neutral, neutral. Okay, so now just try to understand. If I just draw the what profile of this electric field here, so what we observe, this is your x here. I say ये कहीं ना कहीं इस तरह से कह सकते हो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है. इफ आई जस्ट ड्रॉ, यहाँ का जो वोल्टेज मैंने एज्यूम किया वो VX है, यहाँ का वोल्टेज मैंने क्या लिया है VXI है. ओके, इफ आई जस्ट ट्राई टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए ध्यान से आपके पास ये कहीं ना कहीं इंसुलेटर है. सो दिस इज वी हैव ए इंसुलेटर और इलेक्ट्रिक. आई से दिस, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्या रहेगा आपका, कांस्टेंट रहेगा, विच इज नॉट. एंड इफ आई जस्ट ड्रॉ दिस इंसुलेटर, आई से दिस हियर द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज कांस्टेंट. ओके, इन मेटल वी हैव इलेक्ट्रिक फील्ड 0. यस, तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से ऑब्जर्व हुआ है. एंड इफ आई जस्ट ट्राई टू ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए ध्यान से ये आपके पास कहीं ना कहीं यू नो डिप्लीशन लेयर है. और आई से दिस इज वी हैव x इज इक्वल टू 0 हियर, एंड दिस इज x इज इक्वल टू xd हियर, एंड वी नो द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज ऑब्जर्व एट द जंक्शन. ये जो आपका जंक्शन है, अगर आप नॉर्मल पीएन जंक्शन की भी बात करें, सो इन नॉर्मल पीएन जंक्शन व्हाट वी ऑब्जर्व दैट द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड एट द जंक्शन. Through Poisson equation we can derive it, no problem. Okay, so we observe that here the maximum electric field is observed at x is equal to 0. So यहाँ पे कहने की जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी कहाँ पे आएगी आपकी, एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे आएगी, जैसे कि आपकी पीएन जंक्शन में ऑब्जर्व किया आपने. सो द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड वी ऑब्जर्व एट द जंक्शन इन द सेमीकंडक्टर. यस, सो हियर दिस इज वी हैव. एंड जैसे जैसे यहाँ पे आओगे तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती जा रही है, कम होती चली जा रही है. और दिस इज वी ड्राइव थ्रू द मैक्सवेल इक्वेशन, नो प्रॉब्लम. और साथ के साथ यहाँ पे क्या है, न्यूट्रल रीजन है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है आपका 0 रहेगा. तो इस तरह से कुछ आप कह सकते हैं. This is we have what, EOX. I say this EOX, and here I say this E semiconductor maximum here, and here we have a 0. This is we have what, XD. So this is given. So this is a pattern of your basically the electric field in that. So in very much brief, I just explain it here. So here we have electric field is constant, and I say this at the junction we have electric field is maximum. So we observe the pattern of the electric field in that manner. And this side आपका न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी. और यहाँ पे सबसे ज्यादा आएगी जंक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी आपकी, मैक्सिमम वैल्यू. व्हाट वी ऑब्जर्व द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, नाउ एनी हाउ इफ आई कैलकुलेट दिस, सो ई सेमीकंडक्टर मैक्सिमम आई ची मेरे को चाहिए. आपको पता है कि सर यहाँ पे अगर हम बात करें VXI की, सो व्हाट अबाउट द VXI इफ आई जस्ट सी, तो यहाँ पे ये x है और ये आपके पास क्या इलेक्ट्रिक फील्ड था. so definitely if I just take the area of this, so VXI is equal to what, 1 by 2, and this is max into XD. So it should be, I say, VXI is equal to, so area of this 1 by 2, this is maximum height, and this क्योंकि ये आपका क्या है, वोल्ट पर सेंटीमीटर, वोल्ट पर सेंटीमीटर, and this is your centimeter. So I say this is your volt. in basically diode classes we do this. Okay, तो कहीं ना कहीं आपको पता है कि अगर इसका जैसे ही एरिया लेंगे, so it should be the voltage. तो कहीं ना कहीं यहाँ से एप्सिलॉन XI मैक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, which is 2 VXI divided by XD, then which is 2 into this is 0.2, and XD is also given in your exam, which is 0.5. So it should be, I say this, 0.8 volt per micrometer. So this is we have. So once we get, so I this no, also this epsilon is 12 by 4 and into 0.8. So whenever I just try to solve, it become 0.2 and it's 2.4 volt per
micrometer. So this is basically the maximum value of the electric field in the oxide layer. So यहाँ पे मैंने एक कंसेप्ट यूज किया कि जो आपका बाउंड्री है, या ऐसे कह सकते हो, या दो अलग अलग मीडियम है, यहाँ पे हमने जो फील्ड को लिया है, कैसा लिया है, कॉन्टिन्यूस लिया है। तो आपका जो डी वेक्टर होगा वो डी एक्स इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, आपका एप्सिलॉन सेमीकंडक्टर, सॉरी, डी एक्स इज इक्वल टू व्हाट, डी सेमीकंडक्टर। उसके वजह से थोड़ी सी फिर मैथमेटिक्स लगाई एंड फाइनली वी गेट द रिजल्ट। और आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेमीकंडक्टर मैक्सिमम कहाँ पे होगी, जंक्शन पे होगी। यहाँ पे आपकी कांस्टेंट है, इधर ये न्यूट्रल पार्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी। सो फाइनली वी गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। थैंक यू।